न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केसीआर का प्रयत्न सराहनीय। न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर एक पहचान है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने मुख्यमंत्री केसीआर काफी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथ में हड्डी नहीं है कहने के लिए केसीआर ट्रेडमार्क है। एनवी रमना ने कहा कि देश भर में केंद्र सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने की सोच में है, तो तेलंगाना केसीआर 4,320 से अधिक रोजगारों का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। इसी संदर्भ में केसीआर ने कहा कि सीजेआई एनवी रमना को हैदराबाद से अधिक प्रेम है। उन्होंने बताया कि सीजेआई एनवी रमना एक लंबे समय से यहां काम किए हैं, इसलिए उन्हें पूरी जानकारियां हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता तथा सरकार की ओर से सीजेआई एनवी रमना को धन्यवाद ज्ञापित किया। It has a great pleasure and satisfaction for me today to attend this state level judicial officers conference. After formation of the Telangana state, first time we are all meeting here to strengthen the judicial system in the state. And very happy. I think in 6 years back, when the combined state judicial office conference has taken place, after 6 years almost, now we are meeting. And after 2 years of this pandemic, once again we are meeting with little ease and relaxed mode. The purpose of this conference, you are aware that we have to exchange the views, learn some more knowledge in dispensation of the justice and improving the judicial system in the state. रंगारेड्डी जिले में दलित बंधु योजना अमलवारी का जश्न। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने 50 लाभार्थियों को परिवहन वाहन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मेमोरियल स्कूल के पास 50 लाभार्थियों को वाहन प्रदान किए। मंत्री ने बताया कि दलित बंधु योजना के लिए 697 लोगों को चयन किया गया है। 347 लाभार्थियों के खातों में 26.433 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। शेष लोगों को बजट आते ही उनके खातों में सीधे धन जमा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एमएलए सुधीर रेड्डी, मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, यादయ్య, एमएलसी मलेशम, दयानंद, जनार्दन रेड्डी, रग्गा रेड्डी, चेयरपर्सन अनीता रेड्डी, जिला कलेक्टर अमय कुमार आदि शामिल हुए। గతంలో ఎక్కడ తీసుకున్నామో అక్కడ మాత్రమే బిజినెస్ చేసుకోవాలని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఈ పథకం ద్వారా మీరు ఎక్కడైనా చేసుకోండి. మీరు తీసుకున్న గ్రామంలోనే కాకుండా ఎక్కడ పోయినా మీరు బిజినెస్ చేసుకోండి. కానీ మీకు 10 లక్షలు మీ అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు అన్ని కార్యక్రమాలకు భిన్నంగా రక్షణ నిధి అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఎవరైనా దళిత బంధు తీసుకున్న వాళ్ళ కుటుంబం లేదా అనుకోని సంఘటన జరిగి ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో ఈ రక్షణ నిధి అండగా ఉండాలని కొన్ని కోట్ల రూపాయలతోనే రక్షణ నిధి కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన తీసుకుంటున్న ఈ 347 సంబంధించిన లబ్ధిదారులకు సంబంధించి దాదాపుగా 4 కోట్ల వరకు రక్షణ నిధి ఏర్పాటు కాబోతోంది. 4 కోట్లు మనం, 4 కోట్ల గవర్నమెంట్, అంటే 8 కోట్ల వరకు రక్షణ నిధి ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అది ఆదుకునేటట్టు జీవితాంతం ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. కాబట్టి దాన్ని భవిష్యత్తులో ఇంకా అందరికీ అందించాలని జయపాల్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఈ సంవత్సరంలో దాదాపుగా 40,000 కుటుంబాలకు అందించిన సందర్భం ఇప్పుడు మీతో లెక్క పెట్టుకుంటే. కానీ వచ్చే సంవత్సరంలో అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఇప్పుడు మన మార్చిలో మీటింగ్లో అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు. దాదాపుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 లక్షల మందికి ఇవ్వాలని 17,700 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. मन में द्वेष रखकर कपट यात्रा कर रहे हैं। बंडी संजय की पदयात्रा पर मंत्री केटीआर का खुला पत्र। केटीआर ने पत्र में लिखा कि हरित हो रहे पालमोर पर दुश्मनी साध रखिए, आपको यहाँ पर रखने का अधिकार नहीं है। कृष्णा जिले में तेलंगाना के हिस्से पर लड़े बिना पानी की लूट को सहयोग देते हुए पालमोर के किसानों को धोखा दे रहे आप बेशर्म होकर यात्राएं करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि कर्नाटक पर प्रेम दशारो, आपको पालमोर से दुश्मनी क्यों है।
उन्होंने पूछा कि पालमोर एतिपोतला योजना को राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं दिया गया। केटीआर ने पत्र में हर जगह पर भाजपा की तीखे शब्दों में आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने कहा, फसलों की कटवाई के समय बिजली की कटवाई क्यों? रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर गलत नीतियों से विद्युत व्यवस्था को कमजोर कर फेंक दिए है। अपने ट्विटर संदेश में कहा कि खरीदारी में मुख्यमंत्री को कमीशन मिले तो वे विद्युत व्यवस्था को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। रेवंत रेड्डी ने मांग करते हुए बताया कि जो भी हो, किसानों की फसलों की अंतिम तड़ तक निर्बाध बिजली देना चाहिए। शनिवार को हैदराबाद में पूर्ण वैभव के साथ श्री हनुमान की शोभा यात्रा। अब वर्तमान समय में कोरोना का प्रभाव कम रहने से इस बार हनुमान जयंती शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावनाएं है। इसी के मद्देनजर व्यापक स्तर पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। इसके लिए सुरक्षा इंतजामों पर पुलिस की निरंतर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा तथा ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है। गौलीगुड़ा श्री राम मंदिर से मुख्य शोभा यात्रा आरंभ होगी। सिकंदराबाद स्थित ताड़बन हनुमान मंदिर के पास यह शोभा यात्रा संपन्न होगी। कुल 12 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा मार्ग में किसी प्रकार की अवरोध न आए, इसके लिए सुरक्षा इंतजामों पर पुलिस विशेष ध्यान दे रही है। इसके अलावा करमन घाट ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर से और एक यात्रा आरंभ होकर कोठी आंध्रा बैंक के पास मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हो जाएगी। पुलिस ने यात्रा मार्ग में लोगों की सुरक्षा के लिए अभी प्रकार की निगाह व्यवस्था तैनात की है। इस कारण यात्री एमएमटीएस में सफर करना कम कर दिए हैं। अब कोरोना का असर कम हो जाने और स्थितियां सामान्य होने से यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे ने एमएमटीएस रेलों को पुनरुद्धार के कदम उठाए हैं। अब नगरवासी अलग सुबह 4:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के अनुसार पुनः सीजन टिकट जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ हो जाएगी। मंदिर के पुजारियों ने उनका पूर्ण कुंभ के साथ स्वागत किया। पूजा कार्यक्रम के उपरांत मंदिर के पुजारियों को रोजमारी की आवश्यक सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। मंदिर के कर्मचारियों के समक्ष केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर बच्चों ने नोमुला प्रकाश के चेहरे वाले मास्क पहनकर मंदिर प्रांगण में खुशहाल वातावरण बना दिया। इस रैली में ईसा मसीह के रूप में क्रॉस को कंधे पर रखकर ईसाई धर्म के लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड शांति, समानत्व, करुणा तथा प्रेम का संदेश दिया। इस रैली में एमएलसी राजेश्वर राव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसी संदर्भ में ईसा मसीह के जीवन से लोगों को परिचित कराया गया। అన్నప్పుడు మంచి శుభ శుక్రవారం అని చెప్పంటున్నాం. ఏమిటా శుభ శుక్రవారం? ఎలా అయింది శుభ శుక్రవారం? గుడ్ ఫ్రైడే అని ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ పండుగ ఏమిటి? ఇందులో ఈ పండుగలో దాగి ఉన్న రహస్యం ఏంటి? యేసు ప్రభువారికి సిలువ గాయాలైతే ఆయన సిలువను మోసుకొని అంతగా గాయపరచబడితే అది మంచి రోజు ఎలా అవుతుంది? శుభ శుక్రవారం ఎలా అవుతుంది? అది మంచి శుక్రవారం ఎలా పిలుస్తారు? నిజమే, ఆయన గాయపరచబడింది మనందరికీ। आईमैक्स सिनेमा घर में दर्शकों की भीड़ बढ़ जाने से फिल्म देखने आए दर्शकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। यहां आईमैक्स सिनेमा घर में एस्केलेटर पर लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल एस्केलेटर रोक दिया, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। यहाँ तेलुगु राज्यों से ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे राज्यों से भरी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ लोग गोदावरी नदी में स्नान कर गोदावरी माता सहित शिवलिंगों मुक्तेश्वर स्वामी की विशेष पूजा कर रहे हैं। कल एक ही दिन में यहाँ 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँचे। यहाँ भक्तों को स्नान करने में बड़ा आनंद आ रहा है। वेंकट रेड्डी ने कहा कि वसुमती के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने नारायणा के परिवार के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति प्रकट की, साथ ही वसुमती के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా స్టంట్ వేసిన హాస్పిటల్లో ఆమె ఈరోజు తుది శ్వాస విడవడం అనేది చాలా తీవ్రమైన ఆవేదనకు గురి చేస్తుంది, మనస్తాపానికి గురి చేస్తుంది. ఆమె ఒక ఉత్తమ నాయకురాలుగా, కార్యకర్తగా,
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి విశేష సేవలు అందించారు. సిఆర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లిమిటెడ్లో సిఇఓగా పనిచేశారు. 99 టీవీ నడపడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.